So this is example number 8. Again, you see the format of journal. Here we prepare the date column, then particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. Columns के नाम आप खुद लिखोगे, कल हमने लिख लिए थे. December 14. What he says? Paid cash after deducting 4% to Richard, to whom 6,000 was payable. ये भी मैंने करवा दिया था भाई 14 दिसंबर का. So 6,000 में से 4% 240 माइनस किया था, 5760 पे कर दिया था. 14 दिसंबर is already done. 20th दिसंबर पे आइए. Come at 20th December. Receipt 9600 from Frederick in full settlement of rupees 10,000. किसी बंदे से आपने 10,000 रुपया लेना हो, वर्डिंग का समझना मैंने. 10,000 रुपया आपने लेना हो और आपने फेडरिक को बोला कि तू मेरे को 9600 दे दे और तेरा अकाउंट में बंद कर दूं. आप 400 रुपया उससे छोड़ रहे हैं. आप 10,000 के बदले में कितना लेके सेटलमेंट कर रहे हैं? 9600. तो जब कभी भी क्वेश्चन में इन फुल सेटलमेंट लिखा है, देन डिफरेंस ऑफ टू अमाउंट्स, दैट इज द ग्रॉस अमाउंट टू बी पेड एंड एक्चुअल अमाउंट पेड, दोनों का डिफरेंस विल ऑलवेज बी नेम्ड एज डिस्काउंट. सो यू आर हियर बाय गिविंग डिस्काउंट. आपने कैश लिया, कैश आया 9600, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड 9600. जो आपने उसे छोड़ दिया उसे एंट्री में शो करना है. That is discount allowed account. Discount was not directly given in equation this time. He has given only an information कि फेडरिक को देना 10,000 था और हमने उसके साथ सेटलमेंट करी कि तू हम लोगों से 9600 ले ले और तेरा अकाउंट हम हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे. That is what in full settlement of his account. So we will be having the difference. The discount allowed, that will be 402. Who is the giver? Frederick. Frederick is a giver, so credit the giver. मेरा उसके 10,000 था. Frederick was supposed to pay 10,000, but he paid 9600. So this 9600 is the amount received, which I put in front of your bracket. 9600 is the amount paid by him, right? So this was your 20th December. 24th December में देखिए Philips. 24th December को क्या होगा? We paid to Philips. फिलिप्स को हमने कितना पे किया? 4850. उसे देना कितना था? 5000. 5000 के बदले में हमने सिर्फ उसे कितना दिया? 4850 रुपीस. 150 रुपया उसने हमें छोड़ दिया क्योंकि अब उसने कहा है कि फुल सेटलमेंट हो जाए. So 150 he is not asking us to pay, or he is asking us to pay less 150 rupees. So that is discount received, students. Entry क्या आएगी? Philips account debited. Payment की entry है. Philip will be receiver. Philips account debited. See the board. Philip account debited. Yes. To cash account. Cash is going out. To discount receipt. To discount receipt. To discount receipt. Right? So Philips को कितना देना था? 5000. हमने कितना दिया? 4850. 150 रुपीस उसने हमें छोड़ दिए. मीन्स हमने कम पे किया. जितना हमने कम पे किया वो हमारा डिस्काउंट. दिस इज रिसीव्ड. आपको फुल वर्डिंग लिखनी है. ठीक है? So this is what we call discount receipt. Done? Let me complete it. Receipt. Right? Discount received being an income is always to be credited. Discount allowed is our expense is always to be debited in the entry. So these two things you have to keep in mind. In each and every transaction, he gave you the different form that how the discount is being calculated. अगला देखो. Sold goods list price कितना है? 10,000. किसको बेचा? बोहम को. और साथ में लिखा कैश में. वैसे जब पर्सन का नाम होता है तो we consider it a credit sale. लेकिन साथ में उसने बोल दिया कैश में है 10. चलो ये कैलकुलेट करवाते हैं. 10,000 का सामान है, कैश में बेचा. पहले 10% टीडी काटेंगे. 10,000 का 10% काटा तो 1,000 बना. बाकी वैल्यू बची 9,000. उसने कैश में पेमेंट कर दी 5%. अब 9,000 का कैश डिस्काउंट काटेंगे. दैट इज 450. इट मींस कि आप पेमेंट करोगे 8,550. आई एम रिपीटिंग
फर्स्टली TD is to be deducted. सीक्वेंस यही कहता है, पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, जो नेट अमाउंट बचेगी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, उसके ऊपर आप अपना CD मींस आप कैश डिस्काउंट डिडक्ट करो. सो व्हाट आई डिड हियर, 10,000 का 10%, उसने परसेंटेज दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है. वी डिडक्टेड 1000 फ्रॉम 10,000. We have the net amount 9,000. After the deduction of this 1,000, then we have to apply cash discount. And already we discussed in the theory, this is only the cash discount which is to be shown in the books of accounts. Trade discount we will never show in our books of accounts. तो क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि सेल कैश में है, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड to sales account. To sales. Sales is our income. So sale is always to be credited in the entry. Purchases are always to be debited in the entry. Sales are always to be credited in the entry. So how much we received? 8,550, 450 discount है, overall 9,000 था. आपने 10,000 से एंट्री नहीं करनी, because trade discount deduct करने के बाद we always pass the entry with the net amount. So 8th follow up is your homework that you will solve yourself, right? That it is ditto as of your illustration number 8. Now come to the next topic, that is bad debts. And one new term you will learn, bad debts recover. What is the meaning of bad debt? When you sell the goods to your customers on credit basis, sometimes what happen, they never pay that amount back to you. तो उसको हम बोलते हैं पैसा मर गया. That is dead money, or formally that money is named as bad debt. And bad debts are always a loss for the enterprise. And being a loss, it is always to be debited in the journal entry. ठीक है जी? Bad debt means debt नहीं बोलेगा ऐसी कोई भी, B is silent here. Bad debt. पहले तो ये क्या है? This is bad. B for ball वाला bad. ठीक है, this is bad. The amount not received from debtor, the amount which is not recoverable, which is not recoverable. और our debtors, they are making excuses, बहाने बनाए जा रहे हैं, ठीक है, बहानेबाजी करे जा रहे हैं, हमें ऐसे क्या बोलते हैं, टरका रहे हैं, ठीक है. हम बार बार उन्हें मैसेज करते हैं, हम बार बार उन्हें पैसा पे करने के बारे में बोलते हैं, बट दे आर नॉट पेइंग द मनी टू अस. दिस इज व्हाट वी कॉल बैड डेट. कि पैसा क्या हो गया, बैड डेट हो गया. जो पैसा हमें हमारे डेटर से नहीं मिलता, दैट मनी वी कॉल नॉट रिकवरेबल और इररिकवरेबल. सो दिस इज अ लॉस, ठीक है. सो बैड डेट्स विल ऑलवेज बी डेबिटेड इन द एंट्री. फॉर एग्जांपल, आपने सुमित से 5,000 लेना था. सुमित इज द नेम ऑफ द डेटर, ठीक है. He just pay 40% of it, 2,000. 5,000 का 40% सिर्फ 2,000 देता है, तो बैठे बिठाए हमारा 3,000 मर गया. जो पैसा मर गया वो बैड डेट, जो मिल गया वो कैश अकाउंट में डेबिट करो. कितना मिला 5,000 में से? 2,000. जो नहीं मिला वो बैड डेट्स में डेबिट करो, 3,000. और किसने देना था पैसा? सुमित ने. सुमित से गिरो. That is fine. So whatever you receive, that you will be debiting in cash. अगर वो चेक के थ्रू देता है तो आप उसे बैंक अकाउंट में डाल देंगे. अगर वो कैश देता है तो आप उसे कैश अकाउंट में, right? This is account, right? This is bad debts, right? This is the name of Sumit. That is the name of our customer. Done? Bad debts recovered. कई बार क्या होता है, 3-4 महीने के बाद उसका पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है. लाइक जो चीज पहले मेरी बैड डेट हुई थी 3,000, थोड़े दिनों के बाद या थोड़े महीनों के बाद वो हमें वो पैसा दे देता है. He proved his honesty. So whenever he pay back the money, we will be writing cash account debited और उसे बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर. मींस हमारे मरे हुए पैसे की रिकवरी हो गई. कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर. सो दैट इज योर इनकम. बैड डेट्स रिकवर. जब पैसा मर जाता है तो उसे डेबिट करिए, जब मरा हुआ पैसा दोबारा मिल जाता है तो उसे बैड डेट्स रिकवर्ड में डालिए. राइट. सो बैड डेट्स इज अ लॉस. Losses are always to be debited.
Bad debts recovered is our income. Income is always to be credited, so it is to be credited in the journal entry. So these are the two new points we learned, that is 7 and 8. So 9th illustration is solved in your book, that you can revise yourself. I am going to solve follow up 9th, right? Follow up 9th, we will try our best to solve during this period. Let's see follow up 9th. नोट कर लेना साथ साथ. So bad debts और bad debts recovered तक आएगा भाई, ठीक है. First 8 transactions will be the part of your syllabus of your PT1, and most probably it is going to start in the second week of your July. So prepare yourself well during vacation. 5-7 दिन प्रोजेक्ट बनाने को भी लगाने हैं. वाउचर को खोज डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, plus few assignment questions I will share with you in the group. Jaspinder, who owed? Owed word का मतलब है उसने हमें देने थे पैसे. He or she was liable to us. Owed, ठीक है. उसने हमें देना था 50,000. Insolvent का मतलब है हिंदी में दिवालिया निकल, मीन्स उसके पास पैसे है ही नहीं. ऐसे केस में वो कोर्ट में अप्लाई करते हैं लोग और कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो. सो कोर्ट के ऑर्डर से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है वो बंदा. फिर कोर्ट का बंदा अपॉइंट होता है, उसके सारे एसेट बेच के उसकी सारी लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है. अब क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, हमें सारा पैसा उससे नहीं मिला, हमें सिर्फ कितना मिला 40%. 30,000 का 40% हमें मिला, मीन्स 30,000 का 40% हमें 12,000 मिला. तो 60% नहीं मिला. जो नहीं मिला ऑब्वियस है वो बैड डेट है, ठीक है. तो जो पैसा मिल गया है उसके लिए लिखिए कैश अकाउंट डेबिटेड. अकाउंट डेबिटेड 12,000. जो नहीं मिला बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 18,000. हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? जसपिंदर. 30,000. 30,000 उससे लेना था, 12 मिल गया, 18 नहीं मिला. जो नहीं मिला तो बैड डेट है. Being only 40% recovered from Jaspinder, ठीक है. आगे चलिए. 4th March, this was on March 1. Now come to March 4th. March 4th में आइए. Come at March 4th. Poacher who owed 50,000 is declared insolvent. First installment, yes, this is very important line. First installment 20% मिली है, अभी बाकी मिलना है, और तो आप इसे बैड डेट नहीं डाल सकते. आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कोचर. बस बैड डेट में 80% नहीं डालोगे. देखेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट, जब तक सेकंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं होती तब तक हम बैड डेट में नहीं डाल सकते. तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कोचर. अभी बैड डेट नहीं डालेंगे क्योंकि उससे पहली किस्त हमें दी है, मींस पहली इंस्टॉलमेंट टू कोचर. 50,000 का 20%, ओनली 10,000 we receive. तो जब तक वो फाइनल सेटलमेंट नहीं कहता, फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं कहता, हम अमाउंट को बैड डेट में नहीं डालेंगे. जितना मिल गया जस्ट रिसीव इट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर. रूल लगा. 3 गोल्डन रूल्स हमेशा आपके माइंड में सेट होने चाहिए. whenever you pass the journal entries, that should be fed permanently in your mind. So after March 4th we have March 10. क्या हुआ March 10 में? सपना, जिसका अकाउंट पिछले साल हम बैड डेट कर चुके थे, अब उसने मेरे को 12,500 दे दिया. So this is bad debt recovered. Cash account debited. सपना का नाम नहीं आएगा. We have to show it as our income. पिछले साल ये पैसा बैड डेट हो गया था, अब हमें रिकवरी हुई. So cash account debited to bad debts recovered. पूरा वर्ड लिखिए recovered. How much amount we are receiving from her? That is 12,500. Being recovery of bad debts or being bad debts recovered, that is enough. उपासना, जिसका अकाउंट 40,000 था, पिछले साल हम लोगों ने बैड डेट कर दिया, लेकिन हमें कितना मिला? 25,000. ठीक है, तो जितना मिला है बस वही लिख दीजिए. कैश अकाउंट डेबिटेड टू उपासना. जो नहीं मिला वो बैड डेट में नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी बैड डेट में डाल चुके हैं. तो जरूरी नहीं है कि आपको सारा पैसा मिल जाए.
आपको कंफ्यूज करने के लिए अमाउंट दे रखी है 40,000, जितना मिला है आपने उसकी एंट्री करनी है। Once again, cash account debited to bad debts recovered. मरा हुआ पैसा जब मिलता है तो उसे bad debts recovered कहते हैं भाई। And how much we are receiving? Just 25,000 out of 40. 40 का कुछ नहीं करना, ना ही उसका डिफरेंस निकालने बैठना है। जितना मिल गया just pass the journalism. Being only 25,000 recovered from last year's bad debt of rupees 40,000. 40,000 पिछले साल का बैड डेट था, उसमें से हमें सिर्फ 25,000 मिला। नरेशन इलस्ट्रेशन करोगे, you will get more about these concepts. इंदु, जिसने हमें 24,000 देना था, कुछ भी नहीं मिला, इंसॉल्वेंट हो गई इंदु और कुछ भी नहीं मिला, सारे का सारा बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, अगर मिल जाता तो कैश में डाल देती टू इंदु। Bad debts account debited to Indu and Indu was supposed to pay to us 24,000. कुछ भी नहीं मिला। Whole amount is to be declared as bad debt. नया point हमने सुना और किया when whole of the amount is to be treated like bad debt. Next, जोशी, जिसने हमें 48,000 देना था, first composition 48,000 का फिर से first composition bad debt में नहीं डालेंगे, 9600 मिला। Cash account debited, जब फाइनल इंस्टॉलमेंट जब तक नहीं आती बैड डेट नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू जोशी, अभी मिलने की पॉसिबिलिटी है तो बैड डेट कैसे कह दें इसे, टू जोशी। दैट इज 48,000 का जल्दी से कैलकुलेट करो, 920% 9600। नाउ कम टू नेक्स्ट। यस, जोशी से अब देखते हैं, जोशी से अब मेरे को सेकंड एंड फाइनल कंपोजिशन मिली। ध्यान से देखो जी, 48,000 का 30% और मिला और ये फाइनल कंपोजिशन। इट मींस कि 20 पहले मिल चुका है, 30% अब मिला, टोटल 50% मिला, बाकी 50% बैड डेट अब करेंगे। ठीक है, करो जी। 24 2 12 और 2 14, 14,400, 14,400 हमें और मिल गया। एंट्री आएगी और बाकी 24,000 क्योंकि 50% नहीं मिला तो बैड डेट मिला हो। तो जब तक वो फाइनल एंड सेकंड कंपोजिशन की बात नहीं करता, वी कांट पुट द अमाउंट टू बैड डेट्स। जब वो खुद कहता है कि इसके अलावा अब कुछ नहीं मिलना, फाइनली जो मिलना था मिल गया, तो बाकी आपने बैड डेट में डालना। अब लास्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, टू जोशी। पहले जोशी से कितना मिल चुका होगा, 9600 और कितना मिला, 14,400, 24,000 नहीं मिला, सो 38,400 जोशी का। अब देखना जरा गेम देखो यहाँ पे, 48,000 टोटल था, 48,000 में 9600 पहले मिल गया, 38,400 बीच में ऐड करो, 10 और 38, 48,000 जोशी का क्रेडिट का टोटल बनना चाहिए और बन रहा। 9600 पहले मिल गया, 14,400 ये मिला और जोशी का अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि बाकी 50% मैंने किसमें डाल दिया, बैड डेट्स। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू गेट। तो देख लो, उसने हिंट भी दिया हुआ है 31 मार्च का। 31 मार्च को वो कहता है हमें कितना मिला, 24,000 नहीं मिला, वो बैड डेट में डाल दीजिए, और 14,400 मिल गया, वो कैश में डाल दीजिए। So this is the way. Any doubt to anyone about today's lecture, you may ask. Or we will see the back exercise questions. So let's begin with. This is 17th question from the back exercise. I'm at 17th question, everyone. Prepare the format. हाँ, मोदी स्टार्टेड बिजनेस, इकट्ठा क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम के नाम से बिजनेस चल रहा है भाई। तो समटाइम्स इन द क्वेश्चन ही गिव्स द फेमिलियर नेम so that you can he can create the interest among you. So January 1st को मोदी ने बिजनेस स्टार्ट किया, मींस कैपिटल लेके आया। वो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल 2 लाख,
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, being measure started 2 lakh. being measure started नरेशन खुद लिखिएगा. come to next. उसे सामान खरीदा 30,000 का और उसे 5% टीडी मिला, मींस डिस्काउंट मिला. तो सीधा 30,000 का 5% कैलकुलेट करिए, 1500 बनेगा. मींस उसने सामान 28,500 में खरीदा. ऑरल कैलकुलेशन, 30,000 minus 5% of 30,000, that is 1,500 I am deducting. And trade discount we never show in our books of accounts, we just reduce the amount with that. So purchases account debited to cash 28,500. 28,500. Being goods purchased at 5% TD. एग्जामिनर को बता के आना कि मैंने TD डिडक्ट करके अमाउंट लिखी है. परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. 40,000 का सामान खरीदा और 6% लेकिन कैश डिस्काउंट मिला. तो एंट्री क्या बनेगी? परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. और डिस्काउंट को सजा के डेबिट मत करने बैठना, पहले सोचो हमें डिस्काउंट मिला है कि हमने दिया है. अगर हमें मिला है तो वो मेरी इनकम है. टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. डिस्काउंट रिसीव्ड लिखो बिकॉज आपको डिफरेंशिएशन हो जाएगी. इट इज आवर इनकम, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्रेडिट. परचेसेस वर बेसिकली ऑफ 40,000. 6% डिस्काउंट है 2400. 37,600 आप कैश पे दो. सो दिस इज आल्सो टू बी क्रेडिटेड. 37,006. ठीक है जी. What I did here, see the board. What I did here, see this. Yes. See this. 37,600 is our cash to be paid. और 40,000 का 6% 2,400 रुपया क्या बना? डिस्काउंट. So which we wrote in credit. आगे चलते हैं. अब सारी चीजें बेचने की होंगी. सेल देखते हैं. सेल पे हम डिस्काउंट लेंगे तो डिस्काउंट अलाउ जाएगा. दिस इज व्हाट goods 35,000 sold to Huda and 2% TD. 35,000 का 2% निकाले तो 700 बनता है. एंट्री आएगी हुडा अकाउंट डेबिटेड क्योंकि पर्सन का नेम है तो क्रेडिट पे सेम आनी जाएगी टू सेल्स अकाउंट. टीडी कभी भी एंट्री में शो नहीं करते. 35,000 में से 700 माइनस किया 34,300. 34,300. और क्योंकि पर्सन का नाम था बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 2% टीडी. आगे चलिए. नीतीश को सामान बेचा. यस ये जरा ध्यान से सुनो. कैसे पता चलेगा? नीतीश का नाम है, ठीक है, और उसको बोला कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट तभी मिलता है अगर नीतीश ने कैश में पेमेंट करी हो और हमें चेक ऑन द स्पॉट मिल गया. मींस नीतीश का नाम लिखना इमटेरियल है. सेल हमारी कैश बेसिस पे. एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. नीतीश का नाम नहीं आएगा. टू सेल्स. लेट मी इरेज दिस ऑल. देखिए जी कितने का सामान था और क्या क्या मिला हमें. 25,000. 25,000 का 4% कैश डिस्काउंट 1,000 और हमें चेक मिला. जब हमें चेक मिला तो आई विल नॉट राइट कैश, आई विल राइट बैंक. सो दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड. 25 में से 1,000 माइनस करो. 24,000 का चेक. 1,000 उसने हमें डिस्काउंट दिया, हमने उसे डिस्काउंट दिया. ओवरऑल सेल हमारी 25,000. So this is the way. As he was talking about cash in the question, it means the sale was on cash basis and that person is giving us a check. 20,000 का सामान बेचा 5% TD पे, right? And 2% cash discount. चलो जी सारी कैलकुलेशन करते हैं. Let's make all the calculations here. दो तरह के डिस्काउंट हैं. पहले डिस्काउंट देखो. 20,000 5% TD
This is 5% 1000. बाकी रहा 19,000. 2% cash discount. 2%. 380. Value कितनी बची? 0. This is 2. This is 6. 18,620. और इसका हमें चेक में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. चेक में लाना. बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. और सेल कितने की हुई स्टूडेंट्स? 19,000 की. उस 19,000 में 18,620 हमें मिल गया. 380 हमारा डिस्काउंट हमने दिया अपने कस्टमर्स को, और 19,000 आफ्टर द डिडक्शन ऑफ फी. टीडी की डिडक्शन आप हमेशा वर्किंग नोट्स में करोगे. यू विल नेवर शो इट इन द जर्नल एंट्री. माइंड दिस थिंग. अब किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट टू एनीवन यू मे आस्क. एनीथिंग इज नॉट क्लियर इफ टू यू कैन आस्क. राइट? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन?